بہت شکریہ۔ عید الاضحیٰ پر شہر میں 7 سے 8 لاکھ جانور قربان ہونے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ ستھرا پنجاب اتھارٹی کا جانوروں کا 3 لاکھ ٹن سے زائد فضلہ اٹھانے کا پلان تیار۔ 103 عارضی کلیکشن پوائنٹس بنیں گے۔ افسران سمیت 20,000 ورکرز کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ عید پر دفعہ 144 کا نفاذ ہوگا۔ 15 لاکھ بائیو ڈیگریڈیبل ویسٹ بیگ تقسیم کیے جائیں گے۔ 450 ٹن چونا اور 90,000 لیٹر فینائل سے صفائی ہوگی۔ مزید جان لیتے ہیں چیف رپورٹر عمران اکبر سے۔ جی عمران، بتائے گا کیا پلان بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیے، بڑی عید پر صفائی ایجنسی لاہور نے بڑا پلان تیار کیا ہے۔ لاہور میں عید الاضحیٰ پر 7 سے 8 لاکھ جو ہیں جانور قربان ہونے کا تخمینہ لگایا گیا ہے ستھرا پنجاب اتھارٹی نے، اور اس والے سے بڑا آپریشن صفائی کا جو ہے وہ پلان کیا گیا ہے۔ 1 کروڑ 30 لاکھ آبادی کے شہر میں 20 لاکھ گھرانوں اور 10 تحصیلوں میں 274 یونین کونسل میں فضلہ اٹھانے کا نظام تیار کیا گیا ہے۔ عید کے 4 روزہ آپریشن میں افسران سمیت 20,000 ورکرز کی چھٹیاں بھی بند کر دی گئی ہیں۔ پلان کے مطابق 15 لاکھ بائیو ڈیگریڈیبل بیگ جو ہیں وہ شہریوں میں تقسیم کیے جائیں گے، جبکہ عید پر دفعہ 144 بھی لگائی جائے گی جانوروں کے اعضاء کے فضلہ پھیلانے اور اس کو جلانے اور غیر قانونی ڈمپنگ پر فروخت کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ایکشن لے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹریفک کلیئرنس کے حوالے سے فضلہ بردار گاڑیوں کو نہ روکنے کے لیے CTO لاہور کو خط بھی لکھ دیا گیا ہے۔ لاہور میں عید پر 1,271 منی ڈمپرز، پک اپس اور 80 ٹرالیز جو ہیں وہ فضلہ اٹھائیں گی۔ شہر بھر میں 103 عارضی کلیکشن پوائنٹس بنائے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ فضلے کو 4 ڈمپ سائٹ پر منتقل کر کے فوری ڈسپوز کیا جائے گا۔ 2 سرکلز میں تقسیم کر دیا گیا۔ لاہور کو ہر ٹاؤن میں علیحدہ میپنگ کر لی گئی ہے۔ نقشے پر ہر کلیکشن پوائنٹس کی لوکیشن مارک کی گئی ہے۔ ٹیمز کو لائیو ٹریک کیا جائے گا، جبکہ ہر کلیکشن پوائنٹ سے فضلہ 4 گھنٹے میں اٹھانے کا ہدف بھی رکھا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شہریوں کے لیے 15 لاکھ بائیو ڈیگریڈیبل بیگز، 450 ٹن چونا اور 19,000 لیٹر فینال تقسیم کرنے کے حوالے سے جو ہے پلان تیار کیا گیا ہے۔ سب سے زیادہ مشینری منسٹر ٹاؤن میں لگائی جائے گی۔ 133 ڈمپرز اور 180 پک اپس جو ہیں اس آپریشن میں منسٹر ٹاؤن کے پلان میں شامل کی گئی ہیں۔ عید کے 3 روز میں 3 لاکھ ٹن سے زائد جانوروں کا فضلہ اٹھانے کا پلان شامل کیا گیا ہے۔ عید کیمپس لاہور کے ہر یونین کونسل میں لگائے جائیں گے۔ 319 کیمپس لگائے جائیں گے گاہی اور بیگس کی فراہمی کے ساتھ ایک ساتھ ہوگی، جبکہ 130 پوائنٹس پر کیمپس کلیکشن پوائنٹس کے کیمپس پر سہولت اور اس کے ساتھ شکایت سیل اور فضلہ جمع کرنے کا مرکز بھی ہوگا۔ ستھرا پنجاب پلان پر عید پر بارش ہونے کے بھی جو ہے وہ چانسز ہیں، جس پر مشینری کی کمی اور نہروں میں بلاکیج جیسے 6 مسائل کی نشاندہی کی گئی ہے، جس میں سیکشن 144 کا نفاذ کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ واسا بارشی کی صورت میں گٹر سیکشن اور سیکشن جو ہے وہ افعال رکھے گا، اور LWMC نے اپنی لسٹیں تیار کر کے واسا کے حوالے بھی کر دی گئی ہیں، جبکہ اس والے سے مشینری کی کمی پوری کرنے کے لیے دیگر محکموں سے بھی مشینری مانگنے کا پلان تیار کیا گیا ہے۔ بڑی عید پر جو ہے اس کی تیاری کے لیے باقاعدہ طور پر جو ہے پلان کی اپروول بھی لے لی گئی ہے، جس پر اب کام شروع ہوگا اور زیرو ویسٹ کیا جائے گا۔ لاہور کو بڑی عید سے قبل جو ہے تمام شہر میں زیرو ویسٹ آپریشن کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر روز جو ہے زیرو ویسٹ کر کے اگلے دن کی تیاری کی جائے گی، اور عید کے جو تینوں دن ہے اس پر بھی لاہور کو ہر روزانہ زیرو ویسٹ کیا جائے گا۔ سب سے اہم اور امپورٹنٹ بات جس میں 1139 جو ہے جہاں پر شکایت سیل بنایا جائے گا، اس پر جو کال ٹائم ہے اس کا بھی جو ٹائم ہے وہ 5 منٹ کا رکھا گیا ہے، کہ جیسے ہی کوئی کال کرے تو اس کا فوری طور پر اس کی جو نشاندہی ہے اس کا فوری طور پر اس پر عمل درآمد کروایا جائے، اور عمل درآمد کروانے کے لیے کال ٹائم جو ہے وہ 4 سے 5 منٹ رکھا گیا ہے، تاکہ لوگوں کو جو بھی پریشانی آئے اس کا فوری طور پر ازالہ کیا جائے۔ ٹھیک، بہت شکریہ عمران آپ کا۔ شاہپور کانجرا مویشی منڈی میں 4.5 من وزنی ببلو اور شیرو توجہ کا مرکز۔ بہاڑی سے آئے دونوں مکی چینی نسل کے بکرے خوبصورتی میں کسی سے کم نہیں۔ بیوپاریوں نے دونوں بکروں کا ریٹ 16 لاکھ روپے مقرر کر دیا۔ بکروں کے مالک کا کہنا ہے دونوں بکروں کی خوب آؤ بھگت کی ہے۔ آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ شاہپور کانجرا مویشی منڈی میں 4.5 من وزنی ببلو اور شیرو توجہ کا مرکز۔ بہاڑی سے آئے دونوں مکی چینی نسل کے بکرے خوبصورتی میں کسی سے کم نہیں۔ بیوپاری نے دونوں بکروں کا ریٹ 16 لاکھ روپے مقرر کر دیا۔ بکروں کے مالک کا کہنا ہے کہ دونوں بکروں کی خوب آؤ بھگت کی ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں فہد امین سے۔ جی فہد۔
हाँ जी बिल्कुल, ईद कुर्बान करीब आते ही लाहौर की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी बढ़ गई है। व्यापारी जो हैं वो अपने जानवर लेकर आना शुरू हो गए हैं। लाहौर में 5 आरजी और एक मुस्तकिल मवेशी मंडी लगाई गई है। मैं इस वक्त जो है वो शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है वो बड़ी तादाद में जानवर पहुँच चुके हैं। बड़े जानवर भी हैं जिसमें बैल, गाय और बछड़े शामिल हैं, जबकि छोटे जानवर भी हैं जिनमें बकरे, छतरे, मुख्तलिफ इक़साम के जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इस वक्त जहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ पर 2 जानवर जो हैं वो मरकज़ निगाह हैं और उनकी कीमतें भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मेरे पीछे अगर आप देख सकते हैं कि ये जो है वो 2 मक्खी चीनी नस्ल के बकरे हैं जो इस फार्म में मौजूद हैं और इनकी कीमतें क्या हैं ये जो है वो व्यापारी से जानते हैं। अच्छा भाई, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? कहाँ से आए हैं आप? और अच्छा मुझे ये बताएं कि इस बकरे की क्या कीमत है 8 लाख। और वो दूसरे वाले की? ये 2 जोड़े का 16 लाख मांगते हैं। दोनों का 16 लाख रुपया। सर। अच्छा, ये क्या कौन सी नस्ल है और इनके कितना कितना वजन होगा इस पे? इनका वजन है 4.5 मन। 4.5 मन जी वजन है सर इनका। जी। अच्छा, तो अब तक कितना रेट वैसे इनका लग चुका है? इनका 10 लाख लग चुका है। 10 लाख लग चुका है। देखें जी, ये 2 बकरे हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये मक्खी चीनी नस्ल का बकरा है। बबलू जो है वो उन्होंने भी इसका नाम बताया है। तो इसका भी 8 लाख है और इस बकरे का भी जो है वो 8 लाख कीमत इसकी मांग रहे हैं। तो उनका कहना है कि 10 लाख जो है वो दोनों के लग चुके हैं, 16 लाख ये इन दोनों के मांग रहे हैं। तो अब ये बकरे किसकी किस्मत में जाएंगे, कौन जो है वो इनको ख़रीदेगा और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी जो है वो कर सकेगा। तो इनका जो वज़न है वो ये बता रहे हैं, इसका 4.5 मन वज़न और उसका भी जो है वो 4.5 मन, तकरीबन 9 मन वज़न ये क्लेम कर रहे हैं कि इन दोनों बकरों का है। तो उनका कहना है कि जो है वो कस्टमर आ रहे हैं, 10 लाख जो है वो दोनों का लगा चुके हैं। बकरे जो हैं वो बड़े खूबसूरत हैं। अब ये कितने में सेल करते हैं और कितने में इनका जो है वो रेट तय होगा ये तो वक्त ही बताएगा। ताहम दोनों बकरे जो हैं वो इस वक्त शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में हैं और बड़े खूबसूरत बकरे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। और अब खबर दें आपको, जद्दा से लाहौर आने वाली निजी एयरलाइन की परवाज से लैंडिंग से कबल परिंदा टकरा गया। परिंदा तैयारे के इंजन से टकराया है। मुतासरा तैयारे को ग्राउंड कर दिया गया है। लाहौर से कराची जाने वाली परवाज़ 401 कई घंटे से ताख़ीर का शिकार रही। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों का शदीद एहतजाज, एयरलाइन अमले और मुसाफिरों के दरमियान शदीद तकरार भी रहा है। जद्दा से लाहौर आने वाली निजी एयरलाइन की परवाज़ से लैंडिंग से कबल परिंदा टकरा गया और परिंदा तैयारे के इंजन से टकराया। मुतासरा तैयारे को ग्राउंड कर लिया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सूरत हाल देखें तो आज 2 जो वाक़यात हैं वो लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पेश आए हैं, जिसमें जद्दा से लाहौर आने वाली निजी एयरलाइन की परवाज से लैंडिंग से कबल परिंदा टकरा गया। परिंदा त्यारे के इंजन नंबर 1 से टकराया है। परिंदा टकराने की वजह से अब इस त्यारे को ग्राउंड कर दिया गया है। ये लाहौर एयरपोर्ट के गिरदोनुमा इस तरह के जो वाक़यात हैं वो रूनुमा होना मामूल बन चुका है। इस सिलसिले में पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से ये एक इंतबाह भी जारी किया गया है कि यहाँ पर गंदगी ना फेंकी जाए और ख़ास तौर पर जो सॉलिड वेस्ट है उसकी सफाई को यकीनी बनाया जाए। लेकिन इसके बावजूद इन हिदायत पर अमल दरामद नहीं होता, जिसकी वजह से एयरपोर्ट के अतराफ में परिंदों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है और आए रोज़ इस तरह के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। इसी तरह के ही आज ये वाक़या जद्दा से लाहौर आने वाली जो निजी एयरलाइन है उसकी परवाज़ के साथ पेश आया कि लैंडिंग से कबल ये परिंदा इस त्यारे के इंजन नंबर 1 से टकराया, जिसके बाद इसको ग्राउंड कर दिया गया। इसके अलावा लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लाहौर से कराची जाने वाली एयर ब्लू की परवाज़ 401 कई घंटे ताकीर का शिकार रही। परवाज़ को सुबह 10 बजे कराची के लिए रवाना होना था, जो कि मुकर्ररा वक्त पर रवाना ना हो सकी, जिसके बाद एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की तरफ से शदीद एहतजाज भी देखने को मिला और एयरलाइन अमले और मुसाफिरों के दरमियान तकरार का सिलसिला भी जारी रहा। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक परवाज़ की रवानगी से मुतल्लिक जो दुरुस्त मालूमात हैं वो फराहम नहीं की जा रही। तो ये 2 वाक़यात रूनुमा हुए, जिसकी वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बहुत शुक्रिया ज़ैन। आपको एक दफ़ा फिर से बताते चले, जद्दा से लाहौर आने वाली निजी एयरलाइन की परवाज़ से लैंडिंग से कबल परिंदा टकरा गया। परिंदा तैयारे के इंजन से टकराया और मुतासरा तैयारों को ग्राउंड कर दिया गया। लाहौर से कराची जाने वाली परवाज़ 401 कई घंटे से ताख़ीर का शिकार रही। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों का शदीद एहतजाज, एयरलाइन अमले और मुसाफिरों के दरमियान शदीद तकरार भी हुई।
आपको बता रहे हैं कि जद्दा से लाहौर आने वाली निजी एयरलाइन की परवाज से लैंडिंग से कबल परिंदा टकरा गया। परिंदा तैयारे के इंजन से टकराया है। मुतासरा तैयारे को ग्राउंड कर दिया गया है। जद्दा से लाहौर आने वाली निजी एयरलाइन की परवाज से लैंडिंग से कबल परिंदा टकरा गया। लाहौर से कराची जाने वाली परवाज 401 कई घंटे से ताखीर का शिकार है। परिंदा तैयारे के इंजन से टकराया। मुतासरा तैयारे को ग्राउंड कर दिया गया है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि परिंदा तैयारे के इंजन से टकराया है। मुतासरा तैयारे को ग्राउंड कर दिया गया है। लाहौर से कराची जाने वाली परवाज 401 कई घंटे से ताखीर का शिकार है। इसमें 200 से ज्यादा गाड़ियों की जाली रजिस्ट्रेशन का केस। एक्साइज इंस्पेक्टर अब्दुल वहीद और अब्दुल कदीर अदालत में पेश। अदालत ने मुकदमे के तफ्तीशी अफसर को तलब कर लिया। एंटी करप्शन कोर्ट के जज जावेद इकबाल वड़ाइच ने समाअत 4 जून तक मुलतवी कर दी है। मुलजमान पर 200 से ज्यादा गाड़ियों की जाली रजिस्ट्रेशन का इल्ज़ाम है। आपको बता रहे हैं महकमा एक्साइज में 200 से ज़ायद गाड़ियों की जाली रजिस्ट्रेशन का ये केस है और एक्साइज इंस्पेक्टर अब्दुल वहीद और अब्दुल कदीर अदालत में पेश हुए हैं। अदालत ने मुकदमे के तफ्तीशी ऑफिसर को भी तलब कर लिया है। एंटी करप्शन कोर्ट के जज जावेद इकबाल वड़ाइच ने समाअत 4 जून तक मुलतवी कर दी है। मुलजिमान पर 200 से ज़ायद गाड़ियों की जाली रजिस्ट्रेशन का इल्ज़ाम भी लगाया गया है। महकमा एक्साइज में 200 से ज़ायद गाड़ियों की जाली रजिस्ट्रेशन का ये केस है। एक्साइज इंस्पेक्टर अब्दुल वहीद और अब्दुल कदीर अदालत में पेश हुए हैं। आपको बता रहे हैं कि महकमा एक्साइज में 200 से ज़ायद गाड़ियों की जाली रजिस्ट्रेशन का केस है और आपको बताएं कि अदालत ने मुकदमे के तफ्तीशी अफसर को तलब कर लिया है। अदालत ने मुकदमे के तफ्तीशी अफसर को तलब कर लिया। एंटी करप्शन कोर्ट के जज जावेद इकबाल वड़ाइच ने समाअत 4 जून तक मुलतवी कर दी है। मुलजमान पर 200 से ज़ायद गाड़ियों की जाली रजिस्ट्रेशन का इल्ज़ाम भी है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि महकमा एक्साइज में 200 से ज़ायद गाड़ियों की जाली रजिस्ट्रेशन का केस है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज साहिब महमूद अशरफी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। एक भरपूर अंदाज में कौमी यकजहती का इजहार किया और पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर दुनिया को ये पैगाम गया कि ये कौम बुनियानुल मरसूस बन के उन कुव्वतों के सामने खड़ी है जो उम्मत की वहदत के दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं और जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ हैं। एक तरफ मार्का हक पे प्रोग्राम जामियातुल मुंतज़िर में हुए, जामिया अशरफिया में हुए और मरकजी जमीयत अहले हदीस के मराकिज़ में हुए, जामिया कासमिया में हुए, जामिया नईमिया में हुए। कोई ऐसा मदरसा नहीं है या मस्जिद नहीं है जहां पर ये प्रोग्राम नहीं हुए और सब में एक दूसरे के अकाबरीन और कायदीन शरीक हुए। तो मैं कौमी पैगाम अमन कमेटी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ और एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस यकजहती का इजहार गुज़श्ता चंद माह के दौरान इस कौम ने देखा है, खा वो ईरान की सूरत हाल पे मामला हो, खा वो अफगानिस्तान की सूरत हाल पे मामला हो, ये माजी में बहुत कम देखने में आया है। हमारा ईरान के मामले पर भी मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि जो जारहियत और बर्बरियत वहाँ हुई, खामनाई साहब को शहीद किया गया, ये नाकाबिल कबूल है और पाकिस्तान ने इस हवाले से आज के दिन तक जो मौक़िफ़ अपनाया है, पूरी पाकिस्तानी कौम उसकी तायीद कर रही है और पाकिस्तानी कौम उसके साथ खड़ी है। इसी तरह पाकिस्तान की हुकूमत ने, फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब ने, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, जो अरब इस्लामी दुनिया और ईरान के दरमियान अभी आपके सामने सारी साजिश सामने आ गई है कि किस तरह सहयूनी प्रापोगंडा हो रहा है और किस तरह इसराइली अखबारात और ख़ुद इसराइली वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हवाले से जो गुफ्तगू कर रहे हैं, वो तकलीफ ये है कि पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया के लिए अमन का ज़ामिन बना हुआ है। कल ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने हिंदुस्तान में बैठकर जिस अंदाज से पाकिस्तान के ऊपर एतमाद का इजहार किया है, वो पाकिस्तान की बढ़ती हुई सफारती कोशिशों और अमन की कोशिशों को वाज़े कर रहा है। और कल रात ही आपने देखा कि अमेरिकी सदर ने भी ये बात कही
کہ میں نے جو جنگ روکی ہے، جنگ بندی کی ہے، وہ پاکستان کی قیادت کے کہنے پر کی ہے۔ تو پاکستان کو اللہ رب العزت نے مارکہ حق کے بعد ایک ایسی بھرپور کامیابی عطا فرمائی ہے کہ پوری دنیا کے اندر، آپ ذرا بیٹا بیٹھ جاؤ، ذرا آپ ٹھہر جاؤ، اللہ رب العزت نے پاکستان کو مارکہ حق کے بعد جو کامیابی عطا فرمائی ہے کہ پاکستان کا عالمی سطح پر تشخص، وہ جو ہمیں دہشت گرد کہتے تھے، ہم پہ الزام تراشیاں کرتے تھے، آج وہی دنیا کے اخبارات اسلام آباد کو ارض امن، ارض سلامتی اور پیس لینڈ کہہ رہے ہیں، پیس کی جگہ کہہ رہے ہیں۔ ملک کے اندر قومی پیغام امن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے اور باقی تمام جو اکابرین ہیں، انہوں نے جس وحدت اور اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ ہمیں اس وقت ہمارے 2 صوبوں میں دہشت گردی کا سامنا ہے، ان میں ہمارا خیبر پختونخوا اور ہمارا صوبہ بلوچستان ہے۔ آپ نے دیکھا گزشتہ ہفتے ایک عظیم عالم دین، شیخ الحدیث حضرت مولانا ادریس صاحب، لاکھوں علماء کا استاد، ایک وقت میں قال اللہ و قال رسول اللہ جو اس کے صرف طالب علم ہیں، ایک دن کے اندر جو اس سے پڑھتے تھے وہ 3000 کے قریب، 2 بڑے مدارس کا شیخ الحدیث، اس کو جس طرح نشانہ بنایا گیا، اس سے پہلے اسی مدرسہ کے محتمم، نائب محتمم مولانا حامد الحق کو نشانہ بنایا گیا، اس سے پہلے اسی مدرسے کے محتمم مولانا سمیع الحق شہید کو نشانہ بنایا گیا۔ تو پتہ چلا کہ کرزئی کا دور ہو یا اشرف غنی کا دور ہو یا موجودہ جو نگران حکومت ہے وہاں طالبان کی، اس کا دور ہو، پاکستان کے خلاف افغان سرزمین سے سازشوں کا سلسلہ نہیں رک رہا۔ ہم اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ خون جو بہہ رہا ہے وہ بنوں میں ہو، وہ بنوں میں پولیس والوں کا خون ہو یا عام آدمی کا، وہ چارسدہ میں ہو، وہ لکی مروت میں ہو،